Hello everyone, welcome to RS Group of Schools online classes. Today we are going to discuss chapter 1, that is Resources and Development, NCERT class 10th. The topics we are covered today: first, introduction of resources, types of resources, classification of resources, sustainable development and resource planning. So let's begin. First is, what are resources? Resources are the means available for economic and political development such as mineral, wealth, labor force, livestock, etc. In other words, we can say that everything available in the environment that can be used to satisfy our needs. हर वो चीज़ जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करती है वो रिसोर्स है. रिसोर्स टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, रिसोर्स को कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए एंड इकोनॉमिकली feasible होना चाहिए, means possible to do. So types of resources, there are three types of resources. First is natural resources. Natural resources are those resources which get from nature, जो nature से मिलते हैं, and use, जिसका हम use करते हैं without any modification by man. For example, wind, solar energy, air and water. Next is human made resources. Human made resources are those resources which can made and developed by human to satisfy their need using natural resources. For example, natural resources को use करके किसी कोई फॉर्म, उसको कोई फॉर्म दे देना और जिससे ह्यूमन की जो नीड है वो पूरी हो सके. फॉर एग्जाम्पल, बिल्डिंग्स, बुक्स, रॉक्स, व्हीकल्स. नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट because even human beings are essential components of resources, as they also provide services and thus contribute to the economic and political development. They convert, वो convert करते हैं material available in our environment into resources and use them. So human resources are very important. For example, doctors, teachers, engineers, politicians, जो workers, ये सब जो है वो ह्यूमन रिसोर्सेज में इंक्लूड होते हैं. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज. फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन. ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, फर्स्ट इज बायोटिक रिसोर्सेज. व्हाट बायोटिक रिसोर्सेज क्या है? Biotic resources are those resources which obtained from biosphere and have life such as human beings. For example, flora and fauna, fisheries, livestock जो है वो biotic resources में include होता है. Second is abiotic resources. Abiotic resources में these resources are composed of non-living things such as soil, rocks, metals, winds, etc. Means इसमें जो non-living things आती हैं. Next, on the basis of exhaustibility, इसके भी 2 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज. फर्स्ट इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज. रिन्यूएबल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस आर नोन एज रिन्यूएबल और replenishable resources such as solar energy, wind energy, forest, water, wildlife. मतलब वो सारे रिसोर्सेज जो अपने आप को रिन्यू करते हैं वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते. सेकेंड इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच are formed through long geological time period and cannot be renewed. जिसको फॉर्म्ड होने में बहुत टाइम लगता है और वो दोबारा रिन्यू नहीं होते हैं. फॉर एग्जांपल, मिनरल्स, मेटल्स, फॉसिल फ्यूल्स, ये सब जो है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं. नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी. हो गया. नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप. First is individual resources. These resources are owned privately by individuals such as plantation, pasture land, farmland, water in well, pond. ये वो resources होते हैं जिस पे किसी एक का अधिकार होता है, इंडिविजुअल होते हैं.
सेकेंड इज कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, इसमें these resources are accessible to all the members of the community such as grazing ground, ponds in village, public parks, जिसमें कम्युनिटी के सारे मेंबर्स जो है उसको यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज नेशनल रिसोर्सेज. नेशनल, दीज रिसोर्सेज आर अंडर आर सेंट्रल ऑफ नेशन या फिर कंट्री में होते हैं. फॉर एग्जांपल कैनाल, कोल माइंस, ये सब जो है एग्जांपल, जिसमें रेलवे हो गया, ये रोड कंस्ट्रक्शन, ये सब नेशनल रिसोर्सेज में आते हैं. नेक्स्ट इज इंटरनेशनल रिसोर्सेज. These resources are owned and regulated by international institutions. For example, open sea used for peaceful navigation या फिर open sky for flight movement. Okay. Next is on the basis of status of development. So first is potential resources. Potential resources. These resources are found in a region in abundance. किसी रीजन में बहुत ज़्यादा होते हैं बट हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपरली, लेकिन पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं होते हैं. फॉर एग्जांपल सोलर एंड विंड एनर्जी इन गुजरात एंड राजस्थान. सेकेंड इज डेवलप्ड रिसोर्सेज. These resources are surveyed and quantified for utilization through available technology. For example, coal, petroleum, ये सब जो है वो डेवलप्ड में आते हैं. नेक्स्ट इज, या फिर हम कह सकते हैं कि वो सारे रिसोर्सेज जिसमें वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड वी यूज़ प्रॉपरली, जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम उनको प्रॉपर वे में यूज़ कर रहे हैं. कोयल है, पेट्रोल है, सब आते हैं. नेक्स्ट इज स्टॉक. वो रिसोर्सेज जिनका यूज़ करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है. मीन्स दिस रिसोर्सेज हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड एंड रिक्वायर्ड technical knowledge to use them is not developed. For example, hydrogen and oxygen in water can be a rich resource of energy, we know that, but technical know-how for this purpose is not available. Next is reserve. स्टॉक तो है लेकिन उसको अभी यूज़ नहीं कर रहा है, मतलब उसको रिजर्व करके रखा गया है फ्यूचर के लिए. These are specific stock for which appropriate technological know-how is available, but exploration is not started. For example, river water, forest are reserves, but still has limited exploration. Okay. Next is sustainable development. So, sustainable development are, ये जो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन. तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वॉज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड इन जून 1992 एट द फर्स्ट यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट. जो हमारे यहाँ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो रिसोर्स का मतलब क्या, उसका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो आता है उसमें ये होता है कि रिसोर्स को इस तरह से यूज़ किया जाना चाहिए जो एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुँचाए, जिससे हमारी नीड भी पूरी हो जाए और हम रिसोर्सेज का जो यूज़ कर रहे हैं वो भी करें, लेकिन फ्यूचर जनरेशन को ध्यान में रखते हुए. नेक्स्ट इज रिसोर्सेज प्लानिंग कैसी. वाई इज रिसोर्सेज प्लानिंग एसेंशियल. रिसोर्स प्लानिंग क्यों ज़रूरी है. सो फर्स्ट इज एज द रिसोर्स आर लिमिटेड. सब जानते हैं रिसोर्स जो है वो लिमिटेड है, सो देयर प्लानिंग इज नेसेसरी सो दैट वी कैन यूज देम प्रॉपरली एंड एट द सेम टाइम सेव देम फॉर आर कमिंग जनरेशन्स के लिए भी उनको रख सकते हैं. दूसरा, इन अनदर वर्ड में हम ये भी कह सकते हैं कि वाई रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल. फर्स्ट इज टू मीट द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स. द रिसोर्सेज विल बी डिप्लीटेड एज अ रैपिड स्पीड. कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो अपने लालच के लिए जो है रिसोर्सेज का मिसयूज़ करते हैं और उनको पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश करते हैं.
सो द अक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, और जैसे क्या होता है कि रिसोर्सेज कुछ लोगों के हाथ में अगर चले जाते हैं, डिवाइड द सोसाइटी, तो सोसाइटी को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, फर्स्ट इज पुअर एंड सेकेंड इज रिच, विच वुड बी क्वाइट अनजस्ट एंड डेंजरस फॉर द हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी. Third point, indiscriminate use of resources would lead to global crisis. So resources are not only limited, but they are also unevenly distributed over the different parts of the country. Resources planning in India, इंडिया में जो रिसोर्सेज की प्लानिंग है वो किस तरह से है. इंडिया में भी रिसोर्सेज जो है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का. तो रिसोर्सेज प्लानिंग मीन्स आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज अलॉन्ग विद देयर डेवलपमेंट. रिसोर्स प्लानिंग शुड मैच with national development goals. In India, the resources are vast, but their development is insufficient or they are distributed unevenly. इसके कुछ एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं. फर्स्ट इज स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन कोल एंड मिनरल, से भरा हुआ है, रिच है, बट लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट. एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि राजस्थान इज वेल, राजस्थान में जो है सोलर एनर्जी की, क्योंकि वहाँ पे रेत है, रेगिस्तान है, बट लैक वाटर रिसोर्सेज, लेकिन वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है. Some states like Punjab, Haryana have a poor resource base, but they have economically very developed. तो जो इंडिया में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स है, तो इसको प्लान करके चलना पड़ेगा. सो प्रोसेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग कैसी होनी चाहिए. प्लानिंग फॉर रिसोर्सेज डेवलपमेंट, प्लानिंग फॉर रिसोर्सेज डेवलपमेंट यूजिंग एप्रोप्रिएट स्किल, फिर टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन का प्रॉपर यूज़ होना चाहिए, सेटअप होने चाहिए. आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री द इन्वॉल्व्स, जिसमें मैपिंग, क्वांटिटी उनकी पता करना, मेजरमेंट करना रिसोर्सेज का, ये भी प्लानिंग के थ्रू आता है. Matching the resource development plans with overall national development plans. So, India is following the policy of resource planning from the very first 5-year plan rightly after the independence. The availability of resources alone cannot begin. The process of development, necessary technology and institutional setup are also required. और जिसमें हम ये कह सकते हैं कि रिसोर्स जो है उनकी उसके कंट्री के डेवलप में वो हेल्पफुल होते हैं, इसलिए इनकी सेविंग बहुत ज़रूरी है. रिसोर्स में जो गांधी जी मानते थे कि रिसोर्सेज जो है वो इंसान की नीड के लिए सफिशिएंट है. मीन्स जो रिसोर्सेज हमारे नेचर में अवेलेबल हैं वो नीड के लिए ठीक है, सही है. जो नीड जो है उससे ह्यूमन की जो नीड है